Good morning students, how are you all? So today I am going to begin up with a very new chapter of English grammar, that is punctuation and the capital letters. We always think that what are punctuation marks? What is the use of capital letters? So today I am going to explain you all that what are punctuation marks and what is the use of capital letters. As we have always seen that whenever we write anything, whenever we speak anything, whenever we speak anything to anyone, so what happens? We always, whether we are writing something, whether we are speaking something, we always use the punctuation marks. Okay, but whenever we are writing anything, we always use the capital letters as well as the punctuation marks, because these are the important key elements to make our writing precise. हम अगर कोई भी चीज़ लिखते हैं, बोलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है या जो हमारी एक शक्ति होती है लिखने की या बोलने की, उसको हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स एंड द कैपिटल लेटर्स, क्योंकि इनके बिना हमारी राइटिंग या हमारा बोलने का तरीका बिल्कुल भी अधूरा है. सो लेट्स बिगिन अप विद इट. So punctuation marks are the symbols that are used to aid the clarity and comprehension of written language. So whatever we are writing, actually punctuation marks जो हैं वो एक तरीके के symbols है, चिन्ह है, मतलब जो, ठीक है, जो हमारी clarity को एक नई meaning देते हैं. हमारा जो comprehension होता है, जैसे हम लिखते हैं, कोई भी पैसेज होता है, कोई भी स्टोरी होती है, कुछ भी होता है, हमारी जो एक रिटन लैंग्वेज होती है उसको प्रिसाइज करता है, उसको क्लियर करता है और अच्छा और सुंदर बनाता है. ठीक है. Then coming to the next point, what is the use of capital letters? अब capital letters तो हम हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसका आगे क्या रोल होता है, let's see to it. The use of capital letters is very important, बहुत ज़्यादा important है, बहुत महत्वपूर्ण है, as it helps us to organize our writing. क्योंकि जो भी चीज़ें हम लिखते हैं उसको अच्छे से सेट करने में हमारी हेल्प करता है. कोई भी लेटर होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप के बाद हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से, जो इनिशियल लेटर्स होता है उससे बिगिन करते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज ऑल्सो ओवर हियर कि पंक्चुएशन मार्क्स ऑल्सो हेल्प अस इन ऑर्गेनाइजिंग अवर राइटिंग. ठीक है, तो जो हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं या हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है, एंड दैट इज टू ऑर्गेनाइज अवर राइटिंग. हमारी राइटिंग को अच्छा सुंदर बनाने के लिए हम कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी लिखेंगे वो अधूरा ही रहेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा. ऐसे लगेगा कि बस हम लिखते चले जा रहे हैं, ना कहीं फुल स्टॉप है, ना कहीं कॉमा है, ना एपोस्ट्रोफी है, ना कोटेशन मार्क्स हैं, कुछ भी नहीं है. ठीक है. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस पार्ट. Okay students, now I am going to move on with the very third part, that is the types of punctuation marks. There are 11 types of punctuation marks which I am going to tell. What are they? The very first one is the full stop, second is the question mark, third is the exclamation mark, fourth is the comma, fifth is the apostrophe, sixth is the hyphen, seventh is the n dash, eighth is m dash, ninth is quotation marks, then 10th is semicolon, and the last one is the colon. I know many of you would be getting confused that what are these three: hyphen, n dash and m dash. Hyphen is small, n dash a bit bigger than the hyphen, and m dash is the biggest of all. ठीक है, तीनों में यही डिफरेंट है. हाइफन जो है वो छोटा सा होता है, एन डैश जो है वो हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, और एम डैश जो है वो इन दोनों से बड़ा होता है. ओके, सो दिस इज द टाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स और द टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स वन बाय वन. So okay students, now I am going to explain you the types of punctuation marks one by one. So the very first one is the full stop. So what is the use of the full stop? It is used at the end of declarative
and imperative sentence. At the end of any normal, especially the declarative and the imperative sentences that we just usually write, तो full stop जो है हमेशा हम उन sentences के end में इस्तेमाल करते हैं. Like she is going to the market, so we will end this because this is, it can be an imperative sentence, it can be a declarative sentence, so we are using the full stop at the end of this sentence. Then second comes the question mark. So what is the use of the question mark? It is used at the end of the interrogative sentence and to tag a question. If we as we all know that interrogative sentences are always ending up with a question mark, क्योंकि वो एक question mark वाले होते हैं, sentences होते हैं. But whenever we are using a tag, when we are going to tag a question, we are always going to use a question mark at the end, not at the beginning. Okay, so what is your mother's name? This is an interrogative sentence. Whereas you had your breakfast, तुमने अपना breakfast किया है. Didn't you? सही में कर लिया कि नहीं कर रहे? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम टैगिंग अप अ क्वेश्चन. ओके, मेरे को एक क्वेश्चन टैग करना है बिकॉज आई एम यूजिंग दिस डिडंट विद इट. ठीक है, तो फुल स्टॉप का यूज़ होता है कि वो किसी एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है या फिर एम्परेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उसके एंड में इस्तेमाल होता है. लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन को टैग करने में हमारी हेल्प करता है. इज दिस मच क्लियर विथ यू ऑल? Okay students, now I am going to begin up with the third part of the types of punctuation mark, that is exclamation mark. So now let's see what is the use of the exclamation marks. It is used at the end of the exclamatory sentences and an interjection. Okay, तो exclamation mark का जो यूज़ होता है वो हमारे exclamatory sentences में के लिए यूज़ होता है और interjection के end में इस्तेमाल करते हैं हम. ठीक है, like for example we are having what a beautiful painting it is. I am very much surprised to see that how the painting has been made up, how the painter has done the painting. I am very much surprised, that's why I am using an exclamation mark over here. Then for the interjection what we are having the words as ouch, okay, wow and aha. Wow, what a beautiful dress it is. Ouch, my leg got hurt. So such kind of expressions when we are using, at that time we are using this exclamation mark. Exclamation mark मतलब जब हम अचंभे से किसी बात को कहते हैं, सरप्राइज होके किसी बात को करते हैं. ठीक है, that's why we are using this exclamation mark. I hope this is clear. Now let's move with the fourth part, that is the apostrophe. It is used to form possessives of a noun, possessives, ठीक है, and omission of letters in a contraction. जब हम किसी वर्ड को expanded form में लिखते हैं, उसको short form मतलब उसमें से expanded form को ओमिट करने के लिए, मतलब ओमिशन करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हम ऊपर कॉमा लगाते हैं. ठीक है, देन वी आर ऑल्सो हैविंग द पॉसेसिव्स. अगर कोई एक बहुत बड़ा सेंटेंस है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज द एपोस्ट्रॉफी फॉर इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग the hat of the boy. I am having this a whole sentence as the hat of the boy and I want to get it compressed. मुझे sentence को छोटा बनाना है, तो मैं what I will write is the boy's hat. I have used this apostrophe above. मतलब इसका वही है, यहाँ पर भी मतलब वही है कि द हैट ऑफ द बॉय मतलब लड़के की हैट, और इसका मतलब भी वही है जब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में किया, द बॉयज हैट मतलब लड़के की हैट. ओके, नाउ आई एम हैविंग अ सेंटेंस दैट इज आई विल. ओके, आई एम हैविंग अ कॉन्ट्रैक्शन, आई एम हैविंग दिस, आई वांट द ओमिशन. मुझे इसमें से कुछ हटाना है, तो व्हाट आई विल राइट इज आई विल. आई विल रिमूव दिस WI. इस WI की जगह I have already put this apostrophe. Like we are having one more word, did not. It will get converted into, यहाँ से हमने O को omit कर दिया. ठीक है, then in the very first example, the hat of the boy, I will take one more
एग्जाम्पल, द फ्रॉक ऑफ द गर्ल। ओके, इसका क्या हो जाएगा? द गर्ल्स फ्रॉक। ओके, इसका मतलब भी वही है, द फ्रॉक ऑफ द गर्ल, क्योंकि ये हम पॉसेसिव्स, इसमें से हम ऐसे करके पॉसेसिव्स बनाते हैं। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस पार्ट ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स। Okay students, now I am going to begin up with the fifth type of punctuation mark. The fifth one is the hyphen, जो कि एक छोटा सा डैश होता है. What is the use of what are the uses of a hyphen? First one is to form compound nouns और compound adjectives. ठीक है, जो दो शब्दों को मिलाकर हम नाउन बनाते हैं उसको हम कंपाउंड का मतलब होता है मिलाना, और सेम वे कंपाउंड एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव के वर्ड से बनता है. ठीक है, तो हम हाइफन का यूज़ होता है कि हम दो नाउन्स को मिला के कंपाउंड नाउन बनाते हैं और कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं. फॉर कंपाउंड नाउन यू कैन टेक द एग्जाम्पल एज सन इन लॉ. ओके, एंड फॉर दिस एडजेक्टिव यू कैन टेक एन एग्जाम्पल एज स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन. ठीक है, then moving on with the second use is with compound numbers. दो numbers को हम जब मिलाते हैं, like 72, okay, 34. हम जब मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, like 30 + 4 करते हैं, तब हमारा जाके बनता है 34. लेकिन जब हम इस 34 को ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे देन वी विल यूज दिस हाइफन. ओके, देन विथ सम प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स हम सबको मालूम है कि क्या होता है, जो वर्ड्स के पहले आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एज एक्स हस्बैंड. ये आ गया, ये वर्ड प्रीफिक्स है हमारा एक्स. किसके पहले लगाया, हस्बैंड के पहले हमने एक्स लगाया और बीच में डैश कर दिया. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. देन वी विल बी मूविंग विद एन डैश. अब एन डैश क्या होता है, एन डैश जो है वो हाइफन से बड़ा होता है लेकिन एम डैश से छोटा होता है, मतलब बीच का होता है. तो एन डैश के क्या यूजेस है, एन डैश का पहला यूज है टू शो अ स्पैन और रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम. कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर का रेंज हो सकता है. ठीक है, फॉर रेंज ऑफ नंबर्स आई विल टेक द एग्जाम्पल एज 40 to 50. ठीक है, डेट्स का अगर हम लें तो 2001 to 2005. ठीक है, और अगर टाइम का ले तो 10:30 PM to 11:30 PM. ये हमारा हो गया, ये हमारा एन डैश होता है, ये जो बीच में हम लगाते हैं. ठीक है, देन वी आर हैविंग यूज द सेकेंड यूज टू लिंक द टर्मिनल पॉइंट्स ऑन अ रूट. हम जब किसी भी रास्ते पर जा रहे होते हैं तो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होते हैं हम उनको लिंक करते हैं. जैसे दिल्ली पुणे रूट. दिल्ली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड पुणे हमारा एंड पॉइंट है. तो हमने इसके बीच में एंड डैश का इस्तेमाल किया. अब लास्ट यूज आता है हमारा टू शो पार्टनरशिप. हम पार्टनरशिप कैसे शो करेंगे, इंडिया बांग्लादेश टेस्ट मैच. ठीक है, इंडिया एक कंट्री है, बांग्लादेश एक कंट्री है, दोनों के बीच में आ गया
पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप को जोड़ने के लिए हमने एन डैश का इस्तेमाल किया। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर with these two types of punctuation marks. Okay students, so now I'm going to begin up with the 7th type of punctuation mark, that is M dash. As I already told you earlier that it is bigger than N dash and hyphen. Okay, so let's see what are the uses. It is used in pairs to set off the extra information और ideas. जितनी भी extra information होती है या जो extra ideas होते हैं उनको हम remove कर सकते हैं, that are not essential, especially उस information को हम निकालते हैं जो हमारे लिए बहुत important नहीं होती है, ठीक है, to the understanding of the rest of the sentence, ताकि उसकी help से हम बाकी के sentence को use करके जो हमारा एक जिस्ट होता है हम उसे निकाल सकते हैं, ताकि बाकी की इंफॉर्मेशन जो हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड मिसेस सिंह प्रिंसिपल ऑफ थॉमस स्कूल about my son's admission, ठीक है। Here at two places I have used M dash, हमने दो जगह M dash का इस्तेमाल किया है। हमने सेंटेंस को के बीच में जो भी हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, लाइक I told Mrs. Singh who is the principal of, I can add over here, who is the principal of Thomas School, okay, about my son's admission. I have added over here, ठीक है। तो हम यहाँ से who is the को अगर हम हटा दें तो इसकी जगह हम और M डैश लगा दें तो इसकी वजह से भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी, ठीक है, कि किसको बोला, मिसेस सिंह को बोला मैंने, कौन है वो, प्रिंसिपल ने थॉमस स्कूल की, और किस बारे में बोला, अपने बेटे के एडमिशन के बारे में बोला, ठीक है। लेट्स सी द सेकेंड यूज ऑफ एम डैश, टू शो अ ब्रेक इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में ब्रेक दिखाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट of water is 100 degree Celsius dash not 0 degree Celsius, ठीक है। हमने एक सेंटेंस था, हमने सेंटेंस को ब्रेक कर दिया कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा पानी का वो क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द 8th टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज द कोटेशन मार्क्स, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस। इट इज यूज्ड विद द डायरेक्ट कोट्स। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ डायरेक्टली बोलता है तो हम उसे एज इट इज कॉपी कर देते हैं, और किसने कहा है लास्ट में वो भी लिख देते हैं। लाइक लेट्स टेक लुक अप एट एन एग्जाम्पल। I am going to use the quotation marks. It depends on us और it depends on you as well कि हम कैसे quotation marks का यूज़ करना चाहते हैं, डबल का यूज़ करना चाहते हैं कि सिंगल का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। I will check English copies on Monday, said मिसेस राव, ठीक है। मिसेस राव ने कहा था, एक बच्चा गया उनके पास पूछने के लिए कि कॉपी कब चेक होगी, तो मिसेस राव ने उस बच्चे से बोला कि आई विल चेक इंग्लिश कॉपीज ऑन मंडे, ठीक है। तो मिसेस राव के जो वर्ड्स थे वो उस बच्चे ने एज इट इज़ आके बता दिए, क्योंकि ये एज इट इज़ था इसलिए हम इसमें डायरेक्टली कोट्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके। देन सेकेंड यूज इज
टू एम्फेसाइज टाइटल्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड शॉर्ट प्लेस। कोई भी शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ते हैं किसकी लिखी हुई होती है वो भी हमें पता होता है, कोई शॉर्ट प्ले होता है किसका लिखा हुआ है वो भी पता होता है, तो वी विल मार्क दैट ऑल्सो। उसमें भी हम कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक द जर्नी ऑफ मेजाई। ठीक है, ये एक पोयम है, हमने इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में यूज किया, हम इसमें डबल भी लगा सकते, डबल कोटेशन मार्क्स। देन द लास्ट वन इज टू एम्फसाइज अ वर्ड और फ्रेज इन अ कोटेड टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट होता है या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या एक पर्टिकुलर फ्रेज को एम्फसाइज करते हैं, मतलब उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what is the meaning of word aid in the passage? ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमने अनसीन पैसेज पढ़ा होता है, हम पढ़ते हैं अनसीन पैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशंस में, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। ठीक है, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को हमें उसका मीनिंग बताना होता है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को भी हम कोटेशन मार्क्स में एम्फसाइज कर देते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। अब पूरा एक पैसेज हमको मिला, उसमें हमको ये बताना है कि इस वर्ड का मीनिंग, सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है उस पैसेज को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इनका कोटेशन मार्क्स का और एम डैश का क्या क्या यूजेस होता है ये आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, okay students, now I am going to explain you the 9th and the 10th type of punctuation marks. First of all, I will be moving with the 9th type of punctuation mark, that is semicolon, which is also known as a small dot and a comma. So let's see what are its uses. It is used between the two independent clauses when a conjunction is omitted. कोई भी sentence होता है, अगर हम उसमें से conjunction को, ठीक है, conjunction, this one, कंजंक्शन को अगर हम निकाल देंगे, ठीक है, तो जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो सपोर्ट एक दूसरे का करते हैं या अलग अलग, ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अलग अलग स्टैंड कर सकते हैं, तो उनमें से अगर हम कंजंक्शन का इस्तेमाल जो है या यूज़ जो है वो हटा देंगे तो उसके बीच में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, हैवी स्नो कंटिन्यूज, ठीक है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ विच ऑल द फ्लाइट्स आर डिलेड। रीज़न क्या है? हैवी स्नो, मतलब बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी हो रही थी। इसका रीज़न, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि सारी फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया। लेकिन अगर हम इसमें से बिकॉज ऑफ विच ये हटा देते हैं, क्योंकि हम बिकॉज कंजंक्शन है हमारा, क्योंकि बिकॉज हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, अगर हम ये पूरा हटा दें, देन आई एम गोइंग टू यूज दिस semicolon, a dot and a comma between the two. So I'll be using the sentences heavy snow continues semicolon all the flights are delayed. हमें मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। Then the next use is in the list with the internal commas. कोई भी एक लिस्ट होती है जिसमें internally multiple commas होते हैं, वहाँ पर भी हम semicolon का इस्तेमाल करते हैं। For example, the new store has grocery items, stationery, vegetables, fruits on the lower level, then semicolon, electronic goods on the first floor, semicolon, clothing on the
सेकेंड फ्लोर एक्सेट्रा। इस तरीके से एक स्टोर नया खुला है जिसमें कि ग्रोसरी आइटम्स हैं, देन आई हैव पुट अ कॉमा क्योंकि इंटरनली यूज हम कर रहे हैं कॉमास का। स्टेशनरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऑन द लोअर लेवल, ग्राउंड फ्लोर लेवल पे हैगा, ठीक है। देन आई हैव यूज्ड सेमी कोलन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ पर है? फर्स्ट फ्लोर पे है, देन अगेन अ सेमी कोलन। क्लोथिंग कहाँ पर है? सेकेंड फ्लोर पे है, अगेन अ सेमी कोलन। टॉयज ऑन द थर्ड फ्लोर, देन अगेन अ सेमी कोलन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं सेमी कोलन का यूज करके। Then we are having the 10th type of punctuation mark, that is colon, simply also known as double dots, ठीक है। तो इसका यूज है टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। हम कोई भी आइटम्स की लिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप near my school sells, I'll be using colon, stationery items, comma, toys, eatables. It can be anything, any eatable. It can be bread, it can be chocolate, etc. Okay, so what I have done is just to introduce what are the items being sold by the shop that is near my school. Is it is the stationery item. If I want a rubber, pen, pencil, etc., I'll get it over there. If I need some toys to give it to someone, I'll get over there. If any kind of eatables I will be requiring, if I need a bread, if I'll be needing chocolates, whatever it is, I'll get in the shop that is near to my school whenever I'm going back from the school. Okay, so over here I have used this colon mark. Then the second use is between two main clauses when the second sentence explains the first. तो जो भी टू मेन क्लॉजेज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लॉजेज होते हैं, जो हमारा की रोल प्ले करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सेकेंड सेंटेंस होता है वो पहले को एक्सप्लेन करता है। इट कैन बी एनी सेइंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर एन ओल्ड सेइंग, कोलन, think before you act. So remember an old saying, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, एंड think before you act ये सेकेंड सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों हमारे मेन क्लॉजेज हैं, दोनों बहुत आसानी से हम एक दूसरे को अलोन स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, जो कि हमारा सेकेंड सेंटेंस है, ये पहले वाले को हमें समझा रहा है कि हाँ, किसी भी काम को करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी ने कही हुई है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। देन वी आर हैविंग the third use when writing the time between the hour and the minutes. हम कभी भी टाइम को जब लिख रहे होते हैं तो हम हमेशा आर और मिनट्स को अलग अलग करते हैं। जैसे 1:30 PM, तो इसमें 1 क्या है, हमारा आर है, और 30 क्या है, हमारा मिनट्स है। हमने आर को भी अलग कर दिया, मिनट्स को भी अलग कर दिया, और बीच में हमारा कोलन का यूज भी कर दिया। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद द सेमी कोलन एंड द कोलन पार्ट ऑफ द पंक्चुएशन मार्क। Okay students, now let's move on with the last but not the least. The type of punctuation mark is comma. So let's see what are the different uses of comma. So very first uses, it is used to separate words or phrases in a list. Whatever the words we are having, whatever the phrases we are having, it can be name of any item that we are using or we are supposed to buy from the market, or even the name of my friends also. It can be
used with, it can be separated with the help of the comma in the list, like Ranveer, comma Maya, comma Rashi, comma Anuj, and Sohan are my friends. I have a number of friends, so I have mentioned the name of them with the help, I have separated the name of all those with the help of the comma. Okay, so let's see the second use. Before a coordinating conjunction in a compound sentence when both its clauses can stand alone as a complete sentence. कोई भी coordinating conjunction होता है खास करके कंपाउंड सेंटेंस में, जहाँ पर दोनों जो क्लॉजेस होते हैं हमारे वो अलग से सपोर्टिवली खड़े हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गेम वॉज ओवर, कॉमा द क्राउड रिफ्यूज्ड टू लीव. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है. अगर हम कह दें द गेम इज़ ओवर, फुल स्टॉप लगा देंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है. द क्राउड रिफ्यूज टू लीव, फुल स्टॉप, तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, तो भी सेंटेंस अकेला खड़ा हो सकता है. लेकिन हमने दोनों सेंटेंसेस को कंजंक्शन रिमूव करके यहाँ पर कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द थर्ड यूज. आफ्टर द वर्ड्स येस, नो, प्लीज, ऑफ कोर्स, वेल. ठीक है, कोई भी इनमें से हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम कॉमा ज़रूर करते हैं, लगाते हैं. लाइक येस, आई रिसीव्ड द बुके यू हैड सेंड. ठीक है, तुमने जो बुके भेजा था, हाँ मुझे वो मिल गया, येस के बाद हमने कॉमा लगा दिया. इतना क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूज. टू सेट ऑफ कोटेड टेक्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच. कोई भी इंसान कुछ भी कहता है, किसने कहा है, उससे पहले हम कॉमा का यूज ज़रूर करते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट द एग्जाम्पल इज. I will collect the copies from office, comma, said Mrs. सेन. मिसेस सेन ने बोला है कि मैं ऑफिस से कॉपीज कलेक्ट कर लूँगी. तो उन्होंने क्या बोला है, उससे पहले हमने कॉमा का यूज़ किया है. ठीक है, टू कोड द डायरेक्ट स्पीच. Then the next use is to set off the name of the person you are addressing. अगर हम किसी भी इंसान का नाम लेके एड्रेस करते हैं, उसी पर्टिकुलर इंसान को, उसके बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. लाइक डैड, हैव यू ब्रॉट माई ड्रेस. ठीक है, हमने किसको रेफ़र किया, हमने यहाँ डैड को रेफ़र किया है, हम डैड को एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम उनके नाम के बाद कॉमा लगाएंगे. नेक्स्ट, बिफोर अ टैग क्वेश्चन. अगर कभी भी हम क्वेश्चन को टैग करते हैं उसके बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. लाइक यू आर गोइंग टू द पार्टी, कॉमा aren't you. हमने क्वेश्चन टैग किया है इसलिए हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट, टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ डेट. कोई भी डेट हम लिखते हैं, हम वहाँ पे भी सेपरेट करते हैं. ठीक है, एंड टू सेपरेट अ डेट एंड द फॉलोइंग वर्ड. अगर डेट के साथ हम कोई वर्ड लिख रहे हैं हम उसको भी सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, it can be written as 5th August 2019. Okay, it can be also written as August 5, 2020. हम किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं.
ठीक है। देन द लास्ट वन इज टू सेपरेट एक्सप्रेशन दैट आर इन एपोजिशन। कोई भी एक्सप्रेशन होता है, हम किसी को भी रिफर कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गुप्ता, कौन है वो, कॉमा, माई इकोनॉमिक्स टीचर, कॉमा, इज वेरी नाइस मैन। ठीक है, किसका नाम रेफर लिया हमने, उनका ऑपोजिशन है एक, मिस्टर गुप्ता हैं, क्या उनका है, इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वो मेरे, और कैसे इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, सो विद दिस आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद ऑल द पार्ट्स ऑफ द टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस एक्सप्लेनेशन एंड आपको सबको बहुत अच्छे से ये सारे टाइप्स समझ में भी आए होंगे।